Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. ये जो मेरा गांव है यहाँ पर चाहे श्रीनगर के या कश्मीर के जितने भी गांव हैं उनसे बहुत सारी मुख्तलिफ शादियाँ यहाँ पर होती हैं। दहेज लेना और देना इसको बंद कर दो। सानी जिठो छ पत वत पे थोमत ये गोस रोजन रिवाज ना कंट्रोलस मंज। इफ यू हैव मनी तभी तुम्हारी शादी हो सकती है। ये जगह बन गई है कश्मीर में। Baba Wayil village in central Kashmir's Ganderbal district, 30 kilometres from Srinagar. The hamlet of 6,000 people has led a silent revolution in Kashmir. The village is leading the battle against evil social practices. It's among the few villages in the country that has banned dowries and rejected the idea of lavish weddings. जैसे कि हिंदुस्तान में इस वक्त दो गांव ऐसे, एक केरला में आता है नीलंबर और एक कश्मीर में आता है बाबा वाली। तो हमारी खुशकिस्मती है हम लोगों की, कश्मीर की खुशकिस्मती कि हमारा गांव एक डावरी फ्री विलेज करार दिया गया है। यहाँ डिफरेंस ये है कि हम मतलब जो जहेज़ है इसके बारे में मतलब हमने बिल्कुल एक बैन एक लगाई है। तो यहाँ जहेज़ लेना भी मना है, जहेज़ देना भी मना है। Studies have shown that women in Jammu and Kashmir are getting married later than women in the rest of the country. According to a report released by Ministry of Statistics and Program Implementation in 2014, the mean age of women was 22 years and 3 months at the time of marriage in 21 states. But for Jammu and Kashmir, that figure was 22 years and 2 months. In a survey done by a local NGO Tehreek Fala Muslimeen, nearly 50,000 women in Kashmir have crossed the age bar for getting married. Social activists say poverty and dowry is the chief reason for late marriage among women in Kashmir. यहाँ एक सिलसिला चल पड़ा है लेट मैरिजेस का, डिलेड मैरिजेस का। लोग अपनी बच्चियों और बच्चों की शादियों में ताख़ीर करते हैं। उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ वजूहात ये हैं कि बच्ची को तालीम देनी, आला तालीम देनी है जिसमें उनके साल साल गुजर जाते हैं, या फिर ये भी है कि अब उनकी नौकरी लगनी चाहिए तब शादी करेंगे, या फिर ये भी होता है कि उनको जहेज़ चाहिए, लड़के वालों को जहेज़ देनी है, उस वजह से मैरिज डिले होती है। तो ये जो डावरी है, डावरी भी उनमें से एक बड़ी मुसीबत है जिसने हमारी बच्चों की शादियों में बड़ी रुकावट पैदा की है। Lakhs are spent on dowries paid in cash and goods like refrigerators, air conditioners, and even cars. Excessive expectations from families of grooms can lead to abuse towards women when they are not met. I think ये सब कुछ खत्म होना चाहिए because need नहीं है। If you are giving your daughter, मत भेजो उसके साथ 36 लाख की गाड़ी, मत भेजो उसके साथ ACs and ovens, उसको नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम ये अपनी बेटी के लिए कर रहे हो तो डू इट प्राइवेटली, उसको अलग से करो, शो ऑफ नहीं करो। बिकॉज इससे क्या होता है, एक जो बेस लाइन है मिडिल क्लास या जो उससे नीचे है उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। Social activists say in the past it was actually the groom that paid money to the family of the bride for making wedding arrangements. क्या होता था कि जब किसी जगह किसी लड़के वाले की शादी का सिलसिला किसी लड़की वालों के साथ होता था तो उसमें एक रस्म ये थी कि लड़के वाले
शादी के सारे अखराजात पूरे कर देते लड़की के, जिसमें एक रकम मुशख्खस की जाती थी कि ये रकम लड़के वालों को देनी है ताकि उस पैसे से लड़की की शादी के तमाम अखराजात पूरे हो सकते हैं। इसको पछल बोलते थे। ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी। Back in Baba Wayil village, alarm bells rang more than 3 decades ago. Moved by stories of violence against women due to dowry, the village decided to fight back. The village elders came together to form specific guidelines to stop the practice of dowries. Lavish weddings were also banned. A penalty was imposed on those deflecting from the guidelines. People breaking rules were banned from praying in the mosque and refused a burial in the village graveyard. The rules set in motion according to Islamic traditions by the village elders back then were later formalized in the shape of a written set of guidelines for everybody in the village to follow. कश्मीर में 45 साल की लड़कियां, 50 साल की लड़कियां, 35 साल की लड़कियां, 30 से अबो, जिसको किसी को मर्द मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो गरीबी के शिकार हो गए होते हैं। चाहे वो लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, वो गरीब के शिकार है। वो दहेज न दे सकता है तो लेने का तो सवाल ही नहीं है। जब दहेज ही नहीं है वो क्या दे देगा? अल्लाह ताला फरमावा हद मु डलियो, हद नेबर मु गो, ती करियो ये तुई बोर तुलियो, युस बोर तुई हेकान छु तुलित, सो अलाव बोर मु तुलियो सु तत यो तह अख वक्त अख वाते तत यो तह सख्त। According to the village ruling, the groom's family cannot demand anything from the bride's side. The groom's family can present the bride with a maximum of 50,000 rupees, comprising of 20,000 rupees as meher, paid directly by the groom to the bride, 20,000 rupees to be used by the bride for her wedding clothes, and 10,000 rupees for bridal expenses. आज के ज़माने में हमने ओतरो एक मसौदा और नया बनाया जो कि आगे नौजवानों को इसका मदद लगेगा। 20,000 रुपये मैंने महर रखा वक्त के तकाजे के बराबर। 30,000 रुपया हम लड़के वालों से लेता है, इस लड़की वालों को देता है एक मदद भी और महर भी। 3,000 रुपया हम बापत बरका लेते हैं। 53,000 रुपया टोटल जाता है। ये देता है, लेना है लड़के वालों को, लड़की वालों का। और लड़की वाले कोई न दहेज लेता है न उसके साथ कुछ होता है, वो परेशानी नहीं है। Muhammad Shafi Shah's daughter's wedding at Baba Wayil is taking place as per those guidelines. No elaborate arrangements have been made and there is no long guest list. Unlike the multi-course Wazwan meals of Kashmir, fewer food preparations are being served to the guests. आज पन्ने बच्चन खानर इथन कोरमत कि आज खाली तम दिमुत रॉपियस 53,000 बाकी छन अस कोर दिवान का तुत कि सन कोर त वारिया समझदार सो मे पता मोल त थोड़ा गरीब गाँव में रवाज त सह दप वन मे इतकन चीज तितकन चीज इतकन बागन जायन वुचान बागन गाँव में सठा आसान तो सठा सहल ग बिल्कुल सहल बे अत मं कोरन तो लड़कन ये लकटी खरीदारी ग मान कूर हेकान रूजित कहें सत मिसाल मे ये कोर मांगे मसलन वन मे 3 बच्चे यह मे दोमी कोर आज खानर अगर मसलन रेत रवाज ये बमर हा बह हेका अमिस एंगेजमेंट कर या अम सुन कत कर कहीं क्या मे प्रस मे ोन गो जमीन कनाल तो पे मे कर आज सठा बेहतर ग सहल ग। देखो मतलब कितनी जगह पर ऐसे होते कि बहू को जलाया जाता है,
उनको इज्जत दी जाती है, उनको क्रश किया जाता है, ये सिर्फ जहेज़ के लिए। किसी को चाहे मतलब नफ्सियाती इज्जत हो या रूहानी इज्जत हो, तो इस वजह से इनको क्रश किया जाता है, इन पर दबाव डाला जाता है, ये ठीक नहीं है। But this trend is catching up in other places in the valley as well, with grooms and brides voluntarily rejecting giving and taking of dowries. Ghazala Nabi from North Kashmir Sopor opted for a simple marriage. Her father died when she was just 4 years old. She got her employment 3 months back. The family was financially constrained. Her 2 younger sisters and mother supported her, and the groom stood by her decision. No dowry exchanged hands. रोजान बागी इस्लाम कांशुन कॉलोनी सोपोर 51,000 नकदी महज तशक्कुबूली अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मतलब मैं बहुत ही खुश हुई सुन के कि एक गांदरबल में एक छोटे गांव में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से शादी हो रही है। मुझे ये लगता है कि जैसे वहाँ पे शादी होती है वैसे ही हर एक पार्ट में होनी चाहिए थी कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, चाहे वो स्ट्राइक्स की वजह से, चाहे वो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक नहीं रहते हैं, तो इस वजह से एक इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और हर एक इंसान यहाँ पे सेम नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जब एक लड़की का रिश्ता आता है तो माँ बाप पहले सोचता है अगर मैं पहले रिश्ता करती हूँ क्या मेरे पास वो सारा सामान है, क्या मैं उस टाइम पे ये एफर्ट कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। तो ये जब पहले हाँ बोलने से पहले ये सोचता है कि क्या मैं ये एफर्ट कर सकता हूँ, तो ये इसके दिमाग में आता है मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि उतना इनकम नहीं रहता है एक गरीब बंदे का। तो मे बी वो उस तरीका का ये है कि उसको उस टाइम ना करना पड़ता है और वहाँ से क्या होता है एक लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे लेट मैरिजेस होती है। While Ganderbal village has taken the lead in the fight against dowry and lavish weddings, perhaps other places in Kashmir can also take a cue from it, follow in its footsteps and contribute their bit to counter the menace of dowry. With Toogo in Srinagar, Zaffar, Iqbal. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.